Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about the gross anatomy of prostate gland. So let's start. So prostate gland is a gland of male reproductive system. ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं हमारे पास? नंबर वन, टेस्टिस, देन इफरेंट डक्ट्यूल्स, देन एपिडिडमस, वास डेफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट्स, सेमिनल वेसिकल्स, देन प्रोस्टेट ग्लैंड, देन हमारे पास बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स होते हैं, यूरिथ्रा, एंड देन it ends. So this is all the tract of the male reproductive system. So prostate gland is one of the part of the male reproductive system. It is a gland. ये ग्लैंड है, ये क्या करता है, इसकी कुछ सिक्रीशंस होती हैं जो ये सीमेन के अंदर ऐड करवाता है. ठीक है, वो क्यों ऐड करवाता है? टू इंक्रीज द फ्लूइड कंटेंट ऑफ द सीमेन. ठीक है, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ स्पर्म. इट इज अ ग्लैंड, इट हैज ग्लैंडुलर प्रॉपर्टीज एज वेल. ठीक है, और इसके अंदर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज भी हैं जो कि नॉर्मल बाकी ग्लैंड्स में प्रेजेंट नहीं होती. सो व्हाट आर दोज प्रॉपर्टीज? वी विल टॉक अबाउट इट आफ्टर अ व्हाइल. So now you know the जनरल ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड. अब हम देखते हैं कि ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, जो मैंने पूरा आपको पाथ पे बताया है, बॉडी में इसकी लोकेशन क्या है. तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड है हमारे पास, ये प्रेजेंट होता है. दिस इज यूरिनरी ब्लैडर. ठीक है, इफ आई इंक्रीज द डायमीटर, दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर. This is the urethra which is coming from the base, from the apex of the urinary bladder. ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये यूरिनरी यूरिथ्रा जो है, ये डाउनवर्ड जो है वो ट्रेवल कर रही है. ये यूरिथ्रा जब यूरिनरी ब्लैडर से निकलती है तो इट इज सराउंडेड बाय अ ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर व्हिच आई एम नाउ हाईलाइटिंग. तो ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर क्या है? ये हमारे पास है जी प्रोस्टेट ग्लैंड. ठीक है, जो ग्रीन कलर में नजर आ रहा है, दिस इज द प्रोस्टेट ग्लैंड. So now you know it is present beneath the urinary bladder, and it is and the urethra is just in the center of the prostate gland, and it is traversing the prostate gland. That part of urethra that traverses the prostate gland is known as the prostatic urethra. Urethra is very long in males. It has different parts: prostatic urethra, membranous urethra, and then penile urethra. The prostatic urethra is that part which is present inside the prostate gland. So now you know the general location of the prostate gland. We will see it in a bit detail after a while. So let's discuss. Let's move on to the next slide. अब ये जो ग्लैंड है, मैंने बताया कि ये नॉर्मल ग्लैंड्स की तरह नहीं है. सो व्हाट आर दोज एक्सेप्शंस जो इसको नॉर्मल ग्लैंड से डिफरेंशिएट कर रही हैं? सो इट इज अ फाइब्रोमस्कुलर ग्लैंड. नॉर्मली ग्लैंड्स क्या होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम, और उनकी डक्ट्स होती हैं एंड जस्ट दे एंड देयर. बट दिस ग्लैंड इज नॉट दैट मच सिंपल. इट कंसिस्ट ऑफ फाइब्रस टिश्यू एज वेल एज मस्कुलर टिश्यू. ठीक है, इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू पोर्शन ज्यादा होता है. स्मूथ मसल्स भी इवन इसके अंदर पाए जाते हैं. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स? हेयर के जब इजैकुलेशन होनी होती है, दिस प्रोस्टेट ग्लैंड कॉन्ट्रैक्ट्स इन ऑर्डर टू एक्सपेल द सीमेन आउट ऑफ द यूरिथ्रा, out of that particular prostatic part of urethra. So that's the reason of smooth muscles in this gland. So you need to remember that it is a fibromuscular gland. It contains fibrous tissue and muscular tissue as well. Both tissues are present in this gland, and as well as epithelial tissue is also present. So now what is the location? It is present below the neck of urinary bladder. Now you can see the diagram more clearly कि अब इसकी location क्या है. This is the prostate gland, this red one. So this is the prostate gland which the arrow is showing. This is present below the neck of urinary bladder. This is urinary bladder. This is its neck. It is present below it, and it is above the urogenital diaphragm. There is a muscle layer that is known as the urogenital diaphragm that differentiates that marks the end of pelvis and the start of lower limbs. This is known as the urogenital diaphragm. Its center is present and is crossing the urethra. That is known as the urogenital diaphragm. और यहाँ पर prostate gland का lower end होता है, apex होती है. And it is posterior to lower border of pubic symphysis. If we talk about its anterior part, तो ये pubic symphysis है और ये prostate gland है. तो ये बिल्कुल pubic symphysis के पीछे पड़ा हुआ है. ठीक है, and it is anterior to the ampulla of rectum. Where is ampulla of rectum? This is rectum. ठीक है, ये हमारे पास
दिस इज रेक्टम, ठीक है। ये हमारे पास रेक्टम है, ये इसका एम्पुला है, ये बिल्कुल एम्पुला के फ्रंट पर पड़ा हुआ है प्रोस्टेट ग्लैंड। ऑल राइट, now what is its shape? It is like an inverted cone. What an inverted cone looks like, it is like this inverted cone. Its apex is downward and the base is facing the neck of urinary bladder, like this position. ठीक है, तो ये इसकी शेप है. Its apex is directed downward and surrounds the junction of prostatic and membranous urethra. Base directed upward and present just below the neck of bladder, as I told you earlier. So what are the surfaces of prostate gland? Prostate gland की बहुत सारी surfaces होती हैं. अब हम उन surfaces की बात करते हैं. So what are those surfaces? वो surfaces क्या हैं? As it is an inverted cone, so it has four surfaces. Which four surfaces I'm talking about? देखिए, जैसे ये एक inverted cone है, ठीक है. इसकी एक तो posterior surface होगी, एक anterior surface होगी, ठीक है, और दो lateral infrolateral surfaces होंगी जो ऐसे होंगी, ठीक है. अगर ये 3D स्ट्रक्चर देखा जाए ना, तो ये इसकी lateral sides बनेंगी. अगर ये posterior है, अगर हम ऐसे arrows draw करें, if this is posterior and this is anterior, तो ये अगर आप 3D में देखें तो आपके पास ये दोनों साइड जो हैं वो lateral sides बनेंगी, ठीक है. if you can imagine, अभी हम इसके रिलेशंस देखेंगे तो यू कैन क्लियरली मार्क द थ्री सर्फेसेस. So you can name the surfaces as anterior, posterior and two infrolateral surfaces. Now let's talk about the interior surface. What is anterior surface? Anterior surface, this is, if this is the prostate gland, so this is its anterior surface. Then this marks the anterior surface of prostate gland. और इंटीरियर सर्फेस ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड की अगर आप रिलेशंस की बात करें तो क्या क्या रिलेशंस आएंगे? दिस प्यूबिक सिम्फिसिस, ठीक है. देन दिस retropubic space. Retro means back, pubic means pubis. On the back side of pubis there is a space between the pubic symphysis and the prostate gland. This space is known as the retropubic space. ये जो ऐसे नजर आ रही है, ठीक है, ये रिट्रोप्यूबिक स्पेस फिल्ड होती है रिट्रोप्यूबिक फैट से. द फैट इज फिलिंग दिस स्पेस. सो तीन चीजें अभी हमने पढ़ी हैं, प्यूबिक सिम्फिसिस, रिट्रोप्यूबिक स्पेस एंड रिट्रो फैट. सो देन अब आपके पास क्या आता है कि ये इसके एंटीरियर रिलेशन हो गए. इसके अलावा दो लिगामेंट्स अटैच होते हैं, लैटरल एंड मीडियल प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट्स, ठीक है, जो कि इस प्यूबिक सिम्फिसिस को इस ग्लैंड से जोड़ देते हैं, ठीक है. दिस इज द एंटीरियर सरफेस. इस तरह से होती है ना, ये एंटीरियर सरफेस है. तो ये लिगामेंट्स कैसे अटैच होते हैं कि जो एक मीडियल लिगामेंट होता है एंड इफ दिस इज द जो प्यूबिक सिम्फिसिस है, ठीक है. तो इन लिगामेंट्स की अटैचमेंट्स कैसे होती हैं? आई विल शो यू इन दिस डायग्राम. एक मीडियल होता है जो कि बेस के करीब से ओरिजिनेट होता है और इस प्यूबिक सिम्फिसिस पर आकर लग जाता है, और दो लैटरल होते हैं, यानी एक इस साइड से आएगा और एक अंदर वाली साइड उस साइड से आएगा जो कि आकर इस पर अटैच हो जाएगा, ठीक है. सो दो लैटरल विच आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम नियर द एपेक्स ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, और एक मीडियल होता है जो कि इन दोनों के दरमियान से लेकिन थोड़ा ऊपर से निकल रहा होता है, नियर द बेस. सो दीज आर द रिलेशंस ऑफ एंटीरियर सरफेस ऑफ prostate gland. Then we will talk about the posterior surface. अब posterior surface की बात की जाए तो posterior surface आपकी कौन सी बनती है? ये वाली, ठीक है, ये जो मैंने पूरी कवर कर दी है, ठीक है. दिस इज द कोन एंड दिस इज द posterior surface, ठीक है. अब posterior surface के रिलेशनशिप्स में क्या आ रहा है? आपके पास रेक्टम आ रही है, ठीक है, एम्पुला ऑफ रेक्टम, ठीक है. एम्पुला ऑफ रेक्टम मीन्स द मोस्ट स्वोलन पार्ट ऑफ द रेक्टम. एम्पुला ऑफ रेक्टम आ रही है, और एम्पुला ऑफ रेक्टम को और पोस्टीरियर सरफेस को किस चीज ने सेपरेट किया हुआ है? एक फेशिया की लेयर है, ठीक है. इट इज अ लेयर ऑफ फेशिया दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ prostate gland and the ampullary anterior surface of rectum, ठीक है. अब इसका ओरिजिन क्या है? ये फेशिया क्या होता है? ये कहाँ से आता है? हम इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं. सो इफ दिस इज रेक्टम
एंड दिस इज द प्रोस्टेट ग्लैंड, दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर। तो नॉर्मली क्या होता है कि पेरिटोनियम की एक रिफ्लेक्शन, एक लेयर आती है, इधर थोड़ा सा डिप डाउन होती है और वापस इसको कवर करते हुए ऊपर चली जाती है। जहां से ये डिप डाउन करती है ये एक पाउच बनाती है, दिस इज नोन एज, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर एंड दिस इज रेक्टम। ठीक है, हम यूरिनरी ब्लैडर के लिए वेसिकल की टर्म यूज करते हैं। सो दिस इज रेक्टो वेसिकल पाउच, दिस इज व्हाट आर वी पाउच। ठीक है, ये आर वी पाउच नीचे तक इन दोनों के दरमियान तक एक्सटेंड नहीं करता। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो रेक्टो वेजाइनल पाउच है, रेक्टो वेसिकल पाउच है, ये जब नीचे आता है प्रोस्टेट ग्लैंड में तो ये एक फेशिया की फॉर्म में रह जाता है। ठीक है, उस फेशिया को हम क्या कहते हैं, डिनॉन-विलर्स फेशिया या रेक्टोजेनिटल फेशिया। व्हाट वी कॉल्ड इट, डिनॉन-विलर्स फेशिया और रेक्टोजेनिटल फेशिया। ठीक है, तो अब आपको पोस्टीरियर सरफेस के रिलेशंस की कुछ समझ आ गई होगी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ हमारे पास दो इंफ्रोलैटरल सर्फेसिस अब रह गई हैं, हमारे पास इंटीरियर सर्फेस भी हो गई है। वी हैव डिस्कस्ड द पोस्टीरियर सर्फेस एज वेल। नाउ वी आर डिस्कसिंग द इंफ्रोलैटरल सर्फेसिस एंड दे आर वेरी इजी, क्योंकि उनके रिलेशंस बहुत इजी हैं, बिकॉज दे आर सराउंडेड ओनली बाय दिस डायफ्राम, पेल्विक डायफ्राम के जो मसल्स हैं। और ये कौन सा मसल है, दे आर फेसिंग ऑन द बोथ साइड। दिस इज ग्रीन पार्ट में जो नजर आ रहा है, दिस इज आवर लैटरल सर्फेसिस। और इंफ्रोलैटरल सर्फेसिस नजर कब आएंगी, व्हेन यू गिव अ कोरोनल सेक्शन ऑफ द bladder and the prostate gland. So these are the lateral infrolateral surfaces. ठीक है, इनको इस मसल ने ये इस मसल को फेस कर रही है। दिस मसल इज ऑफ pelvic diaphragm का ये पार्ट है और इस मसल का नाम क्या है, लिवेटर एनाई मसल। ठीक है, रिमेंबर दिस नेम ऑफ द मसल कि इंफ्रोलैटरल सर्फेसिस का रिलेशन किस मसल के साथ है, इंफ्रोलैटरल सर्फेस का लिवेटर एनाई के साथ रिलेशन है। सो दैट्स ऑल अबाउट द सर्फेसिस ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। नाउ वी विल टॉक अबाउट द जोन्स के प्रोस्टेट ग्लैंड के जोन्स क्या होते हैं। अच्छा, प्रोस्टेट ग्लैंड को ना हमने एक तो आपने सर्फेसिस पढ़ ली, अब जो इसका अंदर स्ट्रक्चरल पार्ट है जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड है, उसको हमने डिफरेंट डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट थिंग्स। लाइक कि अगर हम उसकी हिस्टोलॉजी की बात करें तो हमने उसको जोन्स में डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में क्या आएगा कि अब वो ग्लैंड है ना, तो उसकी ग्लैंडुलर एबिलिटी, यानी उसके ग्लैंड में से जो पोर्शन ज़्यादा ग्लैंडुलर टिश्यू पर मैंने आपको बताया ना, इसमें सिर्फ ग्लैंडुलर टिश्यू नहीं होता, इसमें फाइब्रोमस्कुलर टिश्यू भी होगा, इसमें कनेक्टिव टिश्यू पोर्शन भी है, इसमें ग्लैंडुलर भी है। तो हमने इसको इस बेसिस पर डिवाइड किया हुआ है। तो जिसमें सबसे ज्यादा ग्लैंडुलर पोर्शन होगा वो एक जोन होगा, जिसमें उसमें थोड़ा कम होगा वो एक जोन होगा, और जिसमें ग्लैंडुलर टिश्यू नहीं होगा वो अलग जोन होगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस तो हमने इसको डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया हुआ है। तो लेट्स डिस्कस जोन्स थ्रू अ डायग्राम। ठीक है, वो कौन कौन से जोन्स हैं, पेरिफेरल जोन, सेंट्रल जोन, पेरी यूरिथ्रल ट्रांजिशनल जोन। ठीक है, और एक और हमारे पास होता है पेरी यूरिथ्रल ट्रांजिशन जोन को ही ट्रांजिशन जोन भी कहते हैं। सो बेसिकली देयर आर 3 जोन्स ऑफ प्रोस्टेट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, अभी हम डायग्राम से देखेंगे, देन यू विल रिमेंबर बेटर कि जो पेरिफेरल जोन होता है वो हमारे पास, उसमें सबसे ज्यादा ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है एंड इट फॉर्म्स 70% ऑफ द ग्लैंडुलर टिश्यू। ये पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। अभी हम वो आगे बात करते हैं कि इसकी लोकेशन क्या है। दिस इज द डायग्राम। ठीक है, अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड को अंदर से शो कर रहा है। प्रोस्टेट ग्लैंड को अगर हम देखें इस तरह से, तो अब आपको क्या नजर आ रहा है, दिस इज द एंटीरियर सरफेस। अब ये एंटीरियर है, ठीक है, एंड दिस इज द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। ये हमारे पास यूरिथ्रा है जो इस प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर से गुजर रही है। दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर, ये उसकी नेक है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये सेंट्रल क्या बच गया, हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, जिसकी हम बात करें। अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड डिफरेंट जोन्स में डिवाइड है, एज आई टोल्ड यू। ठीक है, अब उन जोन्स में अगर आप देखें तो एक जोन आपके पास ये बन रहा है, ठीक है, एक जोन आपके पास ये बन रहा है, और एक जोन आपके पास ये बन रहा है। ठीक है, ये 3 बेसिकली जोन्स हैं, और ये एक एंटीरियर जोन जिसे लेबल किया हुआ है anterior fibromuscular stroma. Some diagrams say that it is also a zone, but anatomically this is not a zone. ठीक है, तो जी अब इसमें से पेरिफेरल जोन कौन सा है, पेरिफेरल जोन ये जो पूरे पेरिफेरी को जिसने सराउंड किया हुआ है ना दोनों साइड से, ठीक है, यानी एंटीरियरली भी और पोस्टीरियरली भी,
ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो पेरिफेरल जोन है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा ग्लैंडुलर टिश्यू है। होना तो ये एंट्रोपोस्टीरियर था, लेकिन ये साइड्स पे चूंकि प्रेजेंट है। अभी मैं आपको एक और आगे डायग्राम दिखाऊंगी जिससे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। व्हाई इट इज नोन एज पेरिफेरल जोन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है जी सेंट्रल जोन। ठीक है, दिस इज आवर सेंट्रल जोन दैट इज प्रेजेंट बिहाइंड द यूरिथ्रा। ठीक है, ये यूरिथ्रा के पीछे प्रेजेंट होगा, इसका कोई भी पार्ट आगे प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज द सेंट्रल जोन। देन हमारे पास आ जाता है ट्रांजिशनल जोन। इसको हम पेरीयूरिथ्रल ट्रांजिशनल जोन भी कहते हैं। पेरीयूरिथ्रल इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अगर आपके पास यूरिथ्रा है तो इसने यूरिथ्रा को ऐसे सराउंड किया होता है। ठीक है, तो इस वजह से इसको पेरीयूरिथ्रल ट्रांजिशनल जोन कहते हैं। ठीक है, तो ये इसके 3 जोन्स थे। आपको ऐसी डायग्राम से भी पूछा जा सकता है। और अगर हम आगे देखें तो इस डायग्राम में ज्यादा क्लियरली शो हो रहा है जोन्स को, ज्यादा क्लियरली शो हो रहे हैं। कैसे कि अब ये देखें। ठीक है, दिस इज होल आवर प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, और अगर हम देखें इसमें तो दिस इज यूरिथ्रा। ये जो इस थोड़े डार्किश कलर में नजर आ रही है, ये जो 2 ओपनिंग्स आकर इसमें ओपन हो गई हैं, ये इजैकुलेटरी डक्ट्स की ओपनिंग्स हैं। हम इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास यूरिथ्रा हो गई। अब आपको जोन्स नजर आ रही हैं। ठीक है, ये जो ग्रीन वाला जोन है ना, जो पेरीफ्रीज में आपको नजर आ रहा है, अब ये उसका पूरा सेक्शन है, ट्रांसवर्स सेक्शन ग्लैंड का। सो ये क्या है? पेरिफेरल जोन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये यूरिथ्रा है। तो ये यूरिथ्रा को जो येलो कलर में आपको नजर आ रहा है, इसने यूरिथ्रा को सराउंड किया हुआ है ना। ठीक है, यूरिथ्रा इसके बीच में आ रही है। सो दिस इज द ट्रांजिशनल जोन, येलो वाला। ठीक है, उसके बाद अगर आप इस ब्लू वाले की, पर्पलिश ब्लू वाले की बात करें तो ये यूरिथ्रा की पूरी बैक साइड पे है। इसका कोई भी पोर्शन यूरिथ्रा के आगे नहीं आ रहा। ठीक है, और ये सेंटर में भी नजर आ रहा है। अब आपको ये सेंटर में नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से इसको सेंट्रल जोन कहते हैं। ठीक है क्या? ठीक है, तो ये 3 जोन थे, सेंट्रल, पेरिफेरल एंड ट्रांजिशनल जोन। तो ये आगे जो पिंक कलर में आपको ये नजर आ रहा है ना, समटाइम्स पीपल से दैट इट इज एंटीरियर जोन, बट इट इज फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा, जो मोस्टली जिसका पूरा जो पार्ट है वो फाइब्रोमस्कुलर पार्ट ऑफ द ग्लैंड बना रहा होता है। ठीक है, तो अब आपको जोन्स क्लियर हो गए कि जोन्स क्या होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर। ऑल राइट। ठीक है, ये एक और डायग्राम है, इससे भी बहुत अच्छा जो है वो क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास यूरिथ्रा है। ठीक है, ये हमारे पास, मैं कलर अगर थोड़ा डार्क यूज करूँ तो ये हमारे पास यूरिथ्रा है। ठीक है, सेम दिस इज द ट्रांजिशनल जोन। ये पीछे वाला जो सेंटर में आ रहा है सेंट्रल जोन, पेरिफेरीज वाला पेरिफेरल जोन, और ये फाइब्रोमस्कुलर जोन। ठीक है, तो ये भी वही सेम डायग्राम है, डिफरेंट कलर्स के साथ। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट लोब्स। एक थे जोन्स और अब है लोब्स। लोब्स क्या होते हैं? लोब्स अब एनाटॉमिकली आ गए हैं। लोब्स बहुत पुरानी क्लासिफिकेशन है, अब वैसे जोन्स एक्सेप्टेबल हैं। लोब्स होते हैं कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो कैप्सूल है वो उसने इसको डिफरेंट लोब्स में डिवाइड किया हुआ है। अगर हम प्रोस्टेट ग्लैंड की कैप्सूल की बात करें, ठीक है, ये अगर हमने ट्रांसवर्स सेक्शन लिया प्रोस्टेट ग्लैंड का, ये इसके सेंटर में यूरिथ्रा है। ठीक है, ये इसके सेंटर में यूरिथ्रा है। तो इसके अराउंड एक कैप्सूल की 2 कैप्सूल होती हैं। एक इसके अराउंड ट्रू कैप्सूल होगा जिसके साथ बिल्कुल एडहेरेंट होगा, विच इज डिराइव फ्रॉम द कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रोमा ऑफ द ग्लैंड इटसेल्फ। ठीक है, वो ग्लैंड से ही डिराइव हुआ है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज ट्रू कैप्सूल। और एक आउटर कैप्सूल होगा, ठीक है, this is known as false capsule. Why? Because it is derived from the endopelvic fascia, ठीक है, which is the continuation of the peritoneum. ठीक है, जो पेल्विक फेशिया बना रहा है, एब्डोमिनल फेशिया था ना, सुपरफिशियल डीप फेशिया, जब वो नीचे आया है, ठीक है, तो वो पेल्विक फेशिया में कन्वर्ट हो गया। पेल्विक फेशिया ने थोड़ा सा जो पार्ट कवर कर लिया है इस ग्लैंड का, सराउंड कर लिया उसको कैप्सूल की शक्ल में, उसको हमने फॉल्स कैप्सूल कह दिया। ठीक है, एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो इन दोनों के दरमियान में, फॉल्स और ट्रू कैप्सूल के दरमियान प्रेजेंट होती है, कि जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड का वीनस प्लेक्सस होता है, जिसके बारे में हम लेटर ऑन बात करते हैं अभी, वो प्रेजेंट होता है बिटवीन दीज 2 लेयर्स ऑफ कैप्सूल, फॉल्स एंड ट्रू कैप्सूल। ठीक है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो अगर हमने इस ग्लैंड को, एडिनोमा हो गया, ट्यूमर हो गया, हमने इसके कोई पार्ट रिसेक्ट करना है, तो अगर हम बाहर से इन्वेड करेंगे इस ग्लैंड पर, बाहर से अगर हम सर्जरी करेंगे तो फिर तो वीनस प्लेक्सस डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यूरिथ्रा के थ्रू हम जो है इस ग्लैंड के यहाँ से उस पार्ट को ग्लैंड की रिसेक्शन करना शुरू करते हैं। ठीक है, इंटरनली। ठीक है,
तो दैट इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, दैट्स एन एडिशनल थिंग, बट ये बात आपको याद रखना जरूरी है कि ये जो इसका वीनस प्लेक्सस है ये ट्रू और फॉल्स कैप्सूल के दरमियान में प्रेजेंट होता है। ऑल राइट, तो लोब्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ट्रू कैप्सूल ने अंदर सेप्टास भेज के डिवाइड किया होता है ग्लैंड को डिफरेंट लोब्स में। नाउ हाउ मेनी लोब्स डज इट हैज? इट हैज 5 लोब्स, 5 लोब्स होते हैं। कौन कौन से लोब्स होते हैं? ठीक है, ये हमारे पास यूरिथ्रा है, ये हमारे पास ग्लैंड है। ये ग्लैंड का एंटीरियर व्यू आपको दिखाया हुआ है जो आपको नजर आ रहा है ना सामने ही, दिस इज द एंटीरियर व्यू एंड दिस इज द कोरोनल सेक्शन ऑफ द ग्लैंड, ठीक है। अब इसके 5 लोब्स हैं, 5 लोब्स। अब अगर हम इसके लोब्स की बात करें तो वो कैसी है कि अगर हम इस डायग्राम पर फोकस करें तो दिस इज द पोस्टीरियर साइड एंड दिस इज द एंटीरियर साइड, ठीक है। अभी इस डायग्राम को भूल जाएं। तो मैंने बताया है कि इस ग्लैंड के 5 लोब्स होते हैं, ठीक है। वो 5 लोब्स अब इस वाली डायग्राम में कैसे पड़े हुए हैं, ठीक है, कैसे पड़े हैं कि एक एंटीरियर पड़ा हुआ है लोब, दिस इज द एंटीरियर साइड, तो एक लोब तो पूरा एंटीरियर है जिसको हमने एंटीरियर लोब कह दिया। अब 2 लोब पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है। अब उन एक लोब भी पीछे था, असल में पहले एक ही था। जब इजैकुलेटरी डक्ट ने आकर इसको इसके इस एक लोब को पियर्स किया और आके ना इधर इस यूरिथ्रा के अंदर घुस गई, ठीक है। तो इसने डिवाइड कर दिया इस वाले लोब को 2 पार्ट्स में। एक इस इजैकुलेटरी डक्ट से ऊपर वाला पार्ट है, एक इस इजैकुलेटरी डक्ट से नीचे वाला पार्ट है, ठीक है। तो जो ऊपर वाला पार्ट है उसको मीडियन लोब कह दिया हमने और जो नीचे वाला है उसको हमने कह दिया है पोस्टीरियर लोब, ठीक है। सो दैट इज द एनाटॉमिकल डिफरेंस। 3 लोब हो गए, अभी 2 लोब रहते हैं, वो कैसे? अब अगर हमने ये एंटीरियर व्यू लिया है, इसका एंटीरियर व्यू से देखा जाए तो 2 लैटरल लोब्स हैं, तो वो लैटरली ऑब्वियसली प्रेजेंट होंगे। तो ये हमारा एंटीरियर है, ये हमारा जो है वो पोस्टीरियर है, ये हमारा मीडियल है, मीडियन लोब है, तो ये हमारे पास 2 साइड वाले लैटरल लोब्स होंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द लोब्स ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। दिस इज अनदर डायग्राम शोइंग द लैटरल लोब्स, ठीक है। लैटरल लोब्स कहाँ नजर आ रहे हैं? ये और ये हमारे पास जो है वो लैटरल लोब्स हैं इस प्रोस्टेट ग्लैंड के। नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। मैंने आपको बताया था प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा के बारे में हम बात करेंगे कि प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा जो है इसकी क्या क्या इसमें ऐसे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं जो ओपन हो रहे हैं और क्या इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं, स्ट्रक्चर कैसा है इसका। सो लेट्स मूव ऑन टू दिस पार्ट, ठीक है। दिस इज द प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरिथ्रा जिसको हम प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा कह रहे हैं, ठीक है। तो ये वो पोर्शन है जो इस प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर से पास कर रहा है, ठीक है। तो ये इसकी बेसिक एनाटॉमी है, ठीक है। इस यूरिथ्रा के इधर एक स्फिंक्टर लगा होता है और एक इधर स्फिंक्टर लगा होता है। इसको कहते हैं प्री प्रोस्टेटिक स्फिंक्टर जो कि प्रोस्टेट में एंटर होने से पहले लगा है, और इसको कहते हैं एक्सटर्नल या पोस्ट प्रोस्टेटिक स्फिंक्टर या एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर। इसको इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर भी कहते हैं ऊपर वाले को, ठीक है। तो ये कंट्रोल करते हैं। अब जब इजैकुलेशन होनी होती है ना तो जो ऊपर वाला स्फिंक्टर है ना ये वाला, ये बंद हो जाता है, ठीक है, कि ताकि जो इजैकुलेशन में सारा वो है जो सीमेन है वो नीचे जाए, वापस जो है वो ब्लैडर में नहीं चला जाए, ठीक है। सो दैट इज द रीजन। अब अगर हम इसकी एनाटॉमी देखें यूरिथ्रा की तो वो कैसी है, दिस इज द डिटेल डायग्राम। बहुत अच्छी डायग्राम है अगर आप इसको गौर से देखें तो। अच्छा, अगर हम यूरिथ्रा को देखें कट सेक्शन में, दिस इज द यूरिथ्रा इन द कट सेक्शन। अगर कट सेक्शन में देखा जाए तो ये गोल नहीं होती बिल्कुल, ठीक है। अगर ये एंटीरियर साइड है ना बॉडी की, ठीक है, और ये हमारे पास पोस्टीरियर साइड है, तो जो यूरिथ्रा है वो पोस्टीरियर एंटीरियर से तो गोल ही है, लेकिन पोस्टीरियर साइड पे ना थोड़ी सी उसने एक अंदर की तरफ एक एलिवेशन बनाई है, वो गोल नहीं है, ठीक है। तो ये एलिवेशन आपको इधर इस रिज की फॉर्म में यहाँ नजर आ रही है, ठीक है। ये ऑल थ्रू द लेंथ इसकी एलिवेशन होती है, दरमियान में आकर ये एलिवेशन थोड़ी सी ब्रॉड हो जाती है, यानी ये इतनी सी नहीं रहती, ये थोड़ी सी ऐसे हो जाती है, थोड़ी चौड़ी हो जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ इसको हम क्या कहते हैं, इस एलिवेशन को यूरिथ्रल क्रेस्ट, क्या कहते हैं, यूरिथ्रल क्रेस्ट, ठीक है। और इस यूरिथ्रल क्रेस्ट के बनने की वजह से, जैसे मैंने अभी इस डायग्राम में बताया कि साइड पे दोनों साइड्स में थोड़े डिप्रेशन आ गया ना, तो इस डिप्रेशन को ही हम कह रहे हैं, यहाँ पर जो नजर आ रहा है ये जिसको प्रोस्टेटिक साइनसेस लेबल किया हुआ है, ठीक है। तो ये बना देते हैं प्रोस्टेटिक साइनसेस। अब ये जो प्रोस्टेटिक क्रेस्ट है इसमें क्या क्या ओपन हो रहा है, प्रोस्टेटिक क्रेस्ट में 3 ओपनिंग है, 1 2 3। ये जो ऊपर वाली ओपनिंग है ये है, दिस इज एन ओपनिंग फॉर प्रोस्टेटिक अट्रिकल। प्रोस्टेटिक अट्रिकल क्या है, अगर मैं एक साइड व्यू बनाऊं तो प्रोस्टेटिक अट्रिकल एक सैक लाइक छोटा सा स्ट्रक्चर है जो कि इस यूरिथ्रा के अंदर ओपन होता है, ठीक है, उसको हम प्रोस्टेटिक अट्रिकल कहते हैं। ये उसकी ओपनिंग है, ठीक है।
और जो नीचे वाली दो ओपनिंग्स हैं, ऊपर वाली तो अट्रिकल की होगी, नीचे वाली दो ओपनिंग्स क्या हैं, इजैकुलेटरी डक्ट्स की ओपनिंग्स हैं। ठीक है, ऊपर वाली प्रोस्टेटिक अट्रिकल की थी और ये हमारे पास इजैकुलेटरी डक्ट की ओपनिंग है। तो ये आपको यूरेथ्रल क्रेस्ट के समझ आ गई है। जो साइड पे इतने सारे जो हैं वो होल्स बने हुए हैं, ये किस लिए हैं, ये ग्लैंड की ओपनिंग डक्ट्स हैं। ठीक है, प्रोस्टेटिक ग्लैंड की जो डक्ट्स हैं वो ये साइड पर साइनसेस में ओपन हो रही हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो इजैकुलेटरी डक्ट हैं वो किस जगह पर यूरेथ्रा में, यूरेथ्रल क्रेस्ट में ओपन हो रही हैं, और जो डक्ट्स हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की वो प्रोस्टेटिक साइनसेस में। ठीक है, और जो इजैकुलेटरी डक्ट्स की ओपनिंग होती है इनको हम नाम देते हैं वेरू मोंटेनम का। ठीक है, अगर मैं इसकी स्पेलिंग लिखूं तो इट इज रिटन एज वेरू मोंटेनम। ठीक है, सो दिस इज द hole from where the ejaculatory ducts open into the urethra. Now we will talk about the blood supply of prostate gland. It's very easy. You can just have to look at this diagram. ठीक है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये इसके ऊपर जो है हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है, ये इसके पीछे जो है हमारे पास रेक्टम है। ठीक है, और ये हमारे पास एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर है जिसकी मैंने आपको पहली बात कर दी। अब इसकी जो आर्टीरियल सप्लाई है वो कहाँ कहाँ से आ रही है। एक इसकी आर्टीरियल सप्लाई आ रही है फ्रॉम द इंफीरियर वेसिकल आर्टरीज। इंफीरियर वेसिकल आर्टरी जो यूरिनरी ब्लैडर को इंफीरियरली ब्लड सप्लाई कर रही है, यूरिनरी ब्लैडर की नेक को ब्लड सप्लाई कर रही है, वही प्रोस्टेट ग्लैंड को भी सप्लाई कर रही है। नंबर 1 तो ये होगी। नंबर 2 क्या आ रही है, नंबर 2 आ रही है मिडल रेक्टल आर्टरीज। ठीक है, रेक्टम से आर्टरीज आ रही हैं जिनको हमने मिडल रेक्टल आर्टरीज कहा है। नंबर 2 पे वो ब्लड सप्लाई कर रही हैं। ठीक है, और नंबर 3 पर एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर की जो ब्लड सप्लाई है, इंटरनल पिडेंडल आर्टरी, वो जो है वो भी हमारे पास हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड को ब्लड सप्लाई कर रही होती है। सो दीज आर द 3 मेन आर्टरीज दैट आर सप्लाइंग ब्लड टू द प्रोस्टेट ग्लैंड। ये किसकी ब्रांचेस हैं, ये देख लेते हैं। दिस इज जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हमारे पास जो ब्रांचेस हैं, जैसे ये इंफीरियर वेसिकल आर्टरी है और ये हमारे पास इंटरनल पिडेंडल आर्टरी है। ये दोनों किसकी ब्रांचेस हैं, ये दोनों ब्रांचेस हैं इंटरनल आइलियक आर्टरी की। विच आर्टरी, इंटरनल आइलियक आर्टरी की एंटीरियर डिवीजन की। सो दिस इज फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। नाउ व्हाट इज द venous drainage of this gland? दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको बताया था अभी लेक्चर के स्टार्ट में कि हमारे पास प्रेजेंट होता है प्रोस्टैटिक वीनस प्लेक्सस। कहाँ प्रेजेंट होता है, ट्रू और फॉल्स कैप्सूल के दरमियान में। ये प्रोस्टैटिक वीनस प्लेक्सस ड्रेन करता है वेसिकल वीनस प्लेक्सस में जो कि यूरिनरी ब्लैडर के अराउंड होता है, और ये ड्रेन करता है अल्टीमेटली आपके पास इंटरनल आइलियक वेन में, और उसके बाद हमारे पास जो है वो कॉमन आइलियक वेन एंड देन टू द इंफीरियर वेना के। दिस इज जनरल वीनस ड्रेनेज। इसके अलावा जो हमारे पास प्रोस्टैटिक वीनस प्लेक्सस है, ये कम्युनिकेट कर रहा होता है वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस। जो आपके पास जो स्पाइनल कॉर्ड में वर्टिब्रास हैं उनके अराउंड भी एक वीनस प्लेक्सस बना हुआ है पूरा, उस वीनस प्लेक्सस के साथ कम्युनिकेट करता है। इस कम्युनिकेशन की वजह से अक्सर का जो प्रोस्टेटिक कैंसर है वो स्प्रेड कर जाता है वर्टिब्रल बॉडीज में, और वो इन्फिल्ट्रेट कर सकता है स्पाइनल कॉर्ड को, लीजन्स कॉज कर सकता है। सो दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्लिनिकल एसोसिएटेड विद द वीनस ड्रेनेज ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। सो वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस और प्रोस्टेट का मैंने आपको बता दिया कि क्या रिलेशन है इसका, कि इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि जो प्रोस्टेटिक कैंसर है वो स्प्रेड हो सकता है वर्टिब्रल बॉडीज में थ्रू दिस कनेक्शन या कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रोस्टेटिक एंड वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस। Now the last thing is the nerve supply of prostate gland. तो ये भी बहुत easy है. It is innervated by the parasympathetic fibers of pelvic splanchnic nerves by way of prostatic plexus, which receives its fiber from the inferior hypogastric plexus for erection and secretum. ये क्या पूरी फारसी लिखी हुई है, अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, 2 मिनट की बात है। ठीक है, इधर हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है। दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक सैक्रल आउटफ्लो है यहाँ पर। ठीक है, तो सैक्रम से S1 S2 S3 सेगमेंट से नर्व्स आई। ठीक है, इधर वो प्लेक्सस एक गैंग्लिया में एंटर होती हैं, इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक गैंग्लिया। साइनैप्स बनाए यहाँ पर, या इस गैंग्लिया से गुजरती हैं, इसमें साइनैप्स नहीं बनाती।
इस गैंग्लिया से गुजरकर वो आती हैं एक और गैंग्लिया में, जो क्या है, प्रोस्टेटिक नर्व प्लेक्सस। वहां पर आती हैं और वहां पर आकर ये साइनैप्स बनाती हैं। ठीक है, साइनैप्स बनाकर ये हमारे पास हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड को देन नर्व सप्लाई होती है थ्रू द, ये इन नर्व्स का क्या नाम होगा, ठीक है, इन नर्व्स का क्या नाम है, पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व्स। सो दैट इज द होल के फाइबर्स कैसे आ रहे हैं और फंक्शन क्या है फॉर इरेक्शन एंड सिक्रीटोमोटर ऑफ एसिनाई। So that's all about the prostate gland. Thank you so much for watching the video. If you want more videos, if you want to see more videos, you have to subscribe my YouTube channel. Thank you so much. Allah Hafiz.